میرا تو آپ کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا، اور اس کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی اس کے لیے ضرورت ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جو سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے وہ اس کے لیے اگر آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے بلڈوز نہیں کر سکتے. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. اگر کوئی آئینی ترمیم بھی کرنی ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے گی. جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ صرف اس کی تشریح کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیا قانون تو نہیں بنا سکتے، وہ قانون میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے. وہ پارلیمنٹ کا کام ہے. تو اب کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کام بھی آپ نے خود ہی سنبھال لیا، اور آپ اس قسم کے کنٹروورسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ اس میں سپریم کورٹ کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من پسند جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر جو آپ کو جس وقت سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ کی کو انوالو کر لیں. یہ تو اعلیٰ عدلیہ کو کنٹروورشل بنانے والی بات ہے، اور اس کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹنے والی بات ہے. قوم اس پہ نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس میں ہم لیگل میجرز کیا لیں گے وہ ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہ بگاڑ سکتے ہیں، نہ آپ کو ہم اس کی اجازت دیں گے، نہ اس کو پاکستان کے عوام ایکسیپٹ کریں گے. اور پھر میں ای سی پی سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ای سی پی کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں. ان کی اتھارٹی کو ایک جعلی وزیر اعظم کا انڈرمائن کرنا یہ بھی کوئی اچھی روایت نہیں ہے. اور قوم جو ہے وہ ای سی پی کے اوپر اب نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ یہ اس کے جعلی اور غیر آئینی احکامات کو مانتے ہیں تو پھر قوم سمجھے گی کہ وہ بائسڈ ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کسی گورنمنٹ کا کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے، وہ قوم کا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے. اس کو آئین کے تحت چلنا چاہیے اور اس کو آئین کے تحت چلانا چاہیے. وہ بھی وقت ہمیں یاد ہے جب آپ ای سی پی کو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سرمنز دیا کرتے تھے اور اس کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی کے ذاتی ادارہ نہیں ہیں، آپ کو یہ فیصلے کرنے چاہیے، آپ کے اندر جو ہے وہ آئین کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو کہاں گئی وہ ساری باتیں آج جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے خود ہی ای سی پی کے چیئرمین بن کے آپ نے اناؤنسمنٹس کر دی. تو ہم ای سی پی کے چیئرمین کو بھی یہ کہتے ہیں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کسی بھی غیر آئینی حکم کو یا احکامات کو ماننے سے انکار کریں، اور آپ آئین کے اندر جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے وہ آپ اس کو کائنڈلی فالو کریں. قوم آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا میرے خیال ہے لانگسٹ پینڈنگ کیس ہے، جس کے اندر شواہد اور جو ایویڈنس ہے وہ ارریفیوٹیبل ہے، وہ سب ای سی پی کے پاس آ چکا ہوا ہے. اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دینا یہ بھی ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہ جعلی حکومت کس طرح دباؤ ڈلوا رہی ہے ایک قومی ادارے کے اوپر، اور کس طرح اپنا من پسند فیصلے اس سے لے رہی ہے. تو ای سی پی کو بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوگا، اور کسی ایک پارٹی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ استعمال نہیں ہو سکتے. قوم کی نظریں ہیں آپ کے اوپر. میڈم یہ بتائیں کہ لاہور کا جلسہ جو کامیاب ہوا، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اسلام آباد کا لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ اور اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں اسمبلی سے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ضمنی انتخابات کروا دیں گے، آپ کے پاس کیا قانونی آپشن ہے؟ دیکھیں، اگر یہ طریقے میں نے سب دیکھے ہوئے ہیں، پالیٹکس کے خارزار میں بہت عرصہ ہو گیا، یہ سب طریقے میں جانتی ہوں. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن. اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں، پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 70% جو اگر آپ نے جعلی ووٹ، چلیں 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے، اس کو میں جعلی کہوں گی، تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم. تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ آپ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں کو سے کوئی مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ
PDM का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी नफ्सियात को समझते हैं, वो जो तस्वीर इशू हुई थी उसके पीछे आपका खौफ झलक रहा था, आपकी नफ्सियात झलक रही थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत आपसे कौम लेगी। जी, आपने जिस तरह बात की कि हम अपना इस्तीफे तो हमने देने ही है, अगर ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं फौरन, तो क्या PDM अपने फैसले के ऊपर कोई नजरसानी करते हुए, कौन सा ऑर्डिनेंस? अगर पहले सेनेट में फौरी तौर पर अगर कहते हैं कि इलेक्शन जल्द करा लेते हैं, सेनेट के इलेक्शन, और उसके साथ साथ नहीं, मैंने इसमें पहले ये बात कर दी है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं हो सकता, उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, उनको वाया सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पाकिस्तानी कौम की नजरें, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कौम को मायूस नहीं करेगी और आइन का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देगी। ऑर्डिनेंसेस के जरिए आप आइन को बुलडोज नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें नैब के ऊपर कहा है कि चेयरमैन नैब के अलावा कोई भी चेयरमैन नैब तो तारीफ नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा जुमला कह देना, रिमार्क्स दे देने, आपका समझ आपके मौक़िफ़ की तायद है या अवामी मौक़िफ़ की तायद है? देखिए, जिस तरह वो बाकी इदारों को ख़राब करके उनके सरबराह बने हुए, मैं समझती हूँ कि नैब का चेयरमैन जो है उसका नाम है इमरान खान। आर्मी चीफ और ISPR की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई, उसके बाद एक तूफान भी उठा, मियां नवाज शरीफ ने आपने रिजेक्ट किया। एक बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी कमेटी बनाई गई थी सिंध कमीना की, उसकी रिपोर्ट क्या बिलावल से डिस्कस हुआ है कि कब आप रिपोर्ट ला रहे हैं, मामला क्या था, या पीपल्स पार्टी आप क्योंकि इत्तेहादी जमात है तो मामला रफा दफा कर दिया? नहीं, रफा दफा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट सामने आनी थी वो आ चुकी है। पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया, उसने मियां नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को मजीद तकवीत भी दी, उस पे मोहर भी सख्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, और वो इस बात पे भी मोहर सख्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की जरूरत है, फैक्ट्स कौम के सामने, जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। मॉडल टाउन में मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक बयान आया जावेद लतीफ की जानिब से कि 4 से 6 लोग विकेट के दोनों साइडों पे खेल रहे हैं, तो क्या आपको उनका पता है और क्या जजा और सजा उनके लिए होगी उन 4 से 6 लोगों के लिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री रही है, एज अपोज टू दैट, इतने टफ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहिद है, कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई ये नहीं कर रहा, सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs, MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीखी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है, और इंशाल्लाह
मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। मरियम साहबा, ये बताइएगा कि आपने अभी सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की है, तो सेनेट इलेक्शन आप पूछिए। सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपने बात की है, तो पिछले जो इलेक्शन हुए थे वो 3 मार्च को हुए थे, इस टेन्योर से पहले हुए थे, जो आप वक्त बता रही हैं उससे पहले हुए थे। तो अगर कैबिनेट ये मंजूर कर लेती है तो आप लोग के पास क्या लीगल प्रोसेस होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इस प्रोसेस के ऊपर, कि अगर कैबिनेट के फैसले को चैलेंज करेंगे आप लोग? इस पे कैबिनेट फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला ईसीपी को करना है। और हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं हमें और क्या हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फैसला पीडीएम करेगी। मैडम ये बताइएगा कि आसाद की जंग है जो इस वक्त जारी है, इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया कि वक्त से पहले वो सेनेट इलेक्शन करवा लेते हैं, तो क्या पीडीएम ने जो उनको डेडलाइन दी है 31 दिसंबर तक की, तो पीडीएम भी अपनी डेडलाइन पर नजरसानी कर सकती है ताकि इनको टफ टाइम दिया जाए? आपके सवाल के 2 कंपोनेंट्स से, एक तो आपने असाब की बात की, जिनके असाब शल हो चुके हैं और जवाब दे चुके हैं, वो आपके सामने कि किस तरह पूरा स्केड्यूल उन्होंने पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उन्होंने पहले कर दिया। ये उनके असाब शल होने की ही निशानदेही करता है। दूसरी बात जो आपने की कि पीडीएम अपने प्रोग्राम को किस तरह से ट्वीक करती है नहीं करती, ये फिर पीडीएम के इजलास में ही फैसला होगा, जिसका ऐलान खुद पीडीएम कर देगी। मूवमेंट के जो अली वजीर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो रुकने असेंबली भी है, तो आप क्या समझती है कि इस तरह से जो सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है उसमें जमहूरियत कहाँ पर खड़ी? देखिए, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके मुल्क में इस किस्म की तहरीकों को अगर आपने अपने साथ ना मिलाया, उनको कौमी धारे से ना जोड़ा, आपने उनको एक पनपने के लिए छोड़ दिया, तो इससे आपकी फेडरेशन जो है वो वीक होगी, इससे स्टेट की रिट भी वीक होगी, इससे पाकिस्तान की जो सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जो एक यूनिटी है, उसके अंदर दरार आएगी। और ये कोई किसी भी चीज़ के साथ डील करने का कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना तरीका नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इक्वल पाकिस्तानी हैं और हमें इसी तरह एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। इधर से ले जी जी। मैडम ये बताइएगा कि अभी आपने फरमाया कि मुस्लिम लीग में यूनिटी है और किसी किस्म का कोई रिफ्ट नहीं है, आपने इसकी तरदीद अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने 2 रोज़ पहले मियां शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की, ताज़ियत की उनके वालिदा को। उनके हवाले से ये खबरें आई हैं कि मियां साहब ने उन्हें मुफाहमत का मशवरा दिया है और इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है उससे इस्लाब करने का मशवरा दिया। ये खबरें आई हैं और मीडिया पे चली भी। एज अपोज टू दैट, ये तो सिर्फ मफरूज़ा है ना, और आपको पता है कि आजकल मीडिया पे जिस किस्म की गेम खेली जा रही है वो मुझे सब समझ आ रही है, और ये जानबूझ के इस किस्म की खबरें रिलीज़ की जाती हैं कोई नैरेटिव बनाने के लिए, और वो ये नहीं जानते कि झूठ से नैरेटिव थोड़ी देर के लिए तो आपका आ जाता है सामने, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। मुझे जो पता चला है वो ये है, और मेरे इल्म के मुताबिक वो कोर्ट में आए हुए थे, जो मुझे पता चला है उन्होंने बिल्कुल इससे उलट बात की है। वो बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ साहब का ये फैसला होगा, पीडीएम का ये फैसला होगा कि हमने इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ उसके साथ हैं बल्कि वो उसको सपोर्ट भी करेंगे, और बल्कि उन्होंने उसके लिए अपनी पार्टी को अहकामात दिए हैं कि उसको उसका टाइमली जो उसके ऊपर जो अमल दरामद है उसको इंश्योर किया जाए। तो ये जो मफरूज़े हैं इनके ऊपर बात मैं ना करूँगी, और ये भी उनके खौफ की अक्कासी है कि वो इन मफरूज़ों के ज़रिए अपने आप को, अपना नैरेटिव ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं, तो ये काबिल तर्स हालत है। मैडम ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास आगे जो लास्ट जो ऑप्शन है वो रिजाइंस का है लॉन्ग मार्च के बाद, तो क्या अब तक की जो पोजीशन है जो आप फोर्सिंग कर रही हैं लॉन्ग मार्च उसके बाद रिजाइन का, सिचुएशंस पर अभी तक हमें जो इतराज़ हैं उन पर उनके कानों पर यूँ ही नहीं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन पर जहाँ से डायलॉग, नेशनल डायलॉग इनिशिएट होना है, तो इस पर बताइएगा कि कितने चांसेस जो है ना अब आपके पास बचे हैं कि इनिशिएट नहीं हो रहा, उनके कान पर जो है जून नहीं। मेरी इतलात इससे बरक्स है। थैंक यू। मीडिया पे उनकी एक तस्वीर आई जिसमें वो सेहतमंद नजर आ रहे थे, पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा वो एंजॉय कर रहे थे, एक उस पर बड़ी तनकीद हो रही। दूसरा मेरा अहम सवाल ये है, नहीं, उस पर तनकीद क्यों हो रही? डॉक्टर्स ने कहा है कि नहीं मियाँ साहब, उस पर तनकीद क्यों हो रही?
कि आपको उनके सेहतमंद नजर आने पे प्रॉब्लम है, या क्यों पिज्जा क्यों नहीं खा सकता इंसान? जो जिनके पेरेंट्स वगैरह कम हैं या इस तरह है, या दिल के मरीज हैं तो चकनाई से दूर नहीं, ये इस तरह की डॉक्टर्स की जो राय है वो कह रहे हैं, तो इस वजह से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे कहीं किसी डॉक्टर का दिखा दें कि उन्होंने मना किया हो कि जो प्लेटलेट्स का या दिल का मरीज है वो कभी कभार पिज्जा नहीं खा सकता। मैं ज़ाती तौर पे ये जानती हूँ कि मियाँ साहब बहुत शौक से कोई पिज्जा के ज़्यादा, हाँ मेरा यही ख्याल है। मैडम ये बता, तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आपके पास नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। क्या जज अरशद मलिक की वफात के बाद वो वीडियोस भी दफन हो गई हैं, या आप मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हैं कि उसको? वीडियोस कभी दफन नहीं होती। अच्छा मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मैडम ये बता दीजिएगा, और सबसे बड़ा मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत उस वीडियो में है जो अवाम के सामने आ चुकी है। मरियम साहबा ये बताएगा कि फैसला कर लिया है तो जाहिर है आप सेनेट के इलेक्शन में आप नहीं आ सकते, तो पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में तैयारी कर रही है हिस्सा लेने की। उन्होंने अपने अरकान को भी कहा है कि आप तैयार हैं, कमेटी वगैरह भी बना रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन जो है इस वक्त गैर मामूली अहमियत का हामिल हो गया है, तो अपोजिशन जो आपका अलायंस है टीम मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेगा, या अगर पीपल्स पार्टी अलग होगी फिर आपका रद्दमल क्या होगा? ये जो अनाउंसमेंट है कि वो पीडीएम उस पर क्या करेगा, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही आना चाहिए। आपका मौक़िफ़ क्या है बतौर? मेरा अलग से इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं है। अब जो मौक़िफ़ आएगा, क्योंकि हम एक इत्तेहाद के अंदर हैं और क्योंकि हम एक मूवमेंट के अंदर हैं, तो अब किसी जमात का कोई जाती या कोई जमाती मौक़िफ़ नहीं आएगा। अब जो मौक़िफ़ आएगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। हुआ क्या आप लाहौर की जलसे से मुकम्मल तौर पे मुतमईन है? एमएनए और एमपी से मुकम्मल तौर पे मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हिस्टोरिक मोबिलाइजेशन थी और चीखें आज तक सुनाई दे रही हैं उस जलसे के बाद से, वो बिला वजह नहीं है। अब वो टीवी पे आके जो भी कहें वो उनकी मजबूरी है, उनको यही कहना पड़ेगा। वो एतराफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि किस किस्म की मोबिलाइजेशन थी, किस किस्म की आवाम के अंदर जो है वो उसकी पजीराई थी, इस मूवमेंट की है। वो अच्छी तरह जानते हैं और चीखें जो सुनाई दे रही हैं वो बिला वजह नहीं है। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर आप लोग, और इनका जो पोल है वो इंटरनेशनल मीडिया ने खोला है। इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर मुस्लिम लीग नून पीटीआई के साथ बैठना चाहेगी अगर बल्कि सॉरी एक बात और, बल्कि मैंने आज लाहौर की जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनकी लाहौर की पूरी क़यादत को ज़ोहराना दिया और उनको शाबाश देने के लिए मैंने खुद इनवाइट किया और उनको शाबाश दी और हमने एक दूसरे को इसकी मुबारकबाद दी जिसके वो मुस्तहिक हैं। हाँ जी, इलेक्शन जो टेन्योर है गवर्नमेंट का, इसको कम करने के हवाले से अगर इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर आपको गवर्नमेंट बुलाती है, पीटीआई की गवर्नमेंट, तो आप लोग 4 साल टेन्योर के ऊपर इत्तेफाक करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2018 से कबल शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ कह चुके हैं कि 4 साल टेन्योर गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर पीडीएम या मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है इलेक्शन इस्लाहात के ऊपर? अगर 4 साल ये हुकूमत तो है नहीं, ये वोट चोरी करके आई है, अवाम के वोट पे डाका डाल के आई है, इसको हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है। पहले दिन से इनके साथ ना कोई बातचीत होनी चाहिए थी, ना इनको किसी चीज़ पे सपोर्ट करना चाहिए था। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती। आपने जनरल पाशा का नाम दिया, लाहौर जलसे में जनरल पाशा का आपने नाम दिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का। क्या जनरल पाशा की बतौर सबूत कोई वीडियो है कि वो जलसा अरेंज करा रहे हैं या लोगों को फोन कॉल्स कर रहे हैं कि आप 2011 का जलसा कामयाब? अगर आपको पता है इस बात का कि वो कर रहे थे तो उसके सबूत की जरूरत नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है। अवामी राब्ता मुहिम मेरा स्केड्यूल फाइनल हो गया ऑलमोस्ट। सिर्फ कुछ डेट्स जो हैं वो थोड़ा इधर उधर उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो हम कर रहे हैं। आज रात तक मेरे पास फाइनल स्केड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। पंजाब में भी है, 4 सूबों के अंदर है इंशाल्लाह ताला, और वो पीपल्स पार्टी भी कर रही है, जो बलोचिस्तान की पार्टीज़ हैं वो भी कर रही हैं। पंजाब में मैं करूँगी और मैं पंजाब से बाहर भी जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। जी, बिलावल भुट्टो ने बहुत कल मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ शरीक हूँ
اور لاڑکانہ میں بے نظیر بھٹو شہید کے مزار پہ حاضری دوں. بالکل میرا نیکٹا کے حوالے سے یہ جو الائنس ہے آپ کا PDM، کیا یہ ایک موقع پر جا کر کوئی انتخابی الائنس میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ آپ بار بار یہ سوال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ الائنس جو ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو چلتے رہنا چاہیے، اور اس میں جیسے جیسے ضرورت پڑے اس میں ہم چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اسی کے بنیادوں پر اس کو چلانا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو مل کے اس کو چلانا چاہیے. یہ لڑائی جھگڑا تفریق اور یہ جو پولرائزیشن ہے، میں اس کو سپورٹ نہیں کرتی. اچھا میڈم نیکٹا کی تھینک یو.